Hello and welcome to all. Today, our first question is consider the following statements. Number one, in India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from three constituencies. Number two, in 1991 Lok Sabha election, Sri Devilal contested from three Lok Sabha constituencies. Number three, as per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies. Which of the statements given above is or are correct? Only one, only two, one and three, two and three. At this point, you should pause the video, recall your concept, think over it, read the question again carefully, and mark your answer somewhere. Then you can move towards answer and analysis part. Our correct answer in this case is B. Only two. Let's see why first statement is wrong. In India, there is no law, right, restricting the candidates from contesting one Lok Sabha election from three. There is law in India, that is RPA Act 1951, and it was amended in 1996 to restrict the candidates, right? In Lok Sabha elections of 1991, Devilal contested from three constituencies. That is also correct. As per third statement, as per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha, the cost of by-elections is borne by Election Commission, not the party. We will discuss them in detail in explanation. Let's see. लोकसभा इलेक्शन सबसे पहले हमें पढ़ने की ज़रूरत है क्या? आरपीए एक्ट 1951, उसमें सेक्शन 33 सब क्लोज 7 में साफ साफ मेंशन है कि कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है. कब से? 1996 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से. उससे पहले कैंडिडेट 2 या 2 से ज़्यादा से भी कंटेस्ट कर सकता था. 1991 में हालांकि ये छूट थी, इसीलिए देवीलाल ने 3 कंस्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट किया था, दैट इज सीकर, रोहतक, फिरोजपुर. लेक्चर 16 क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिटेल से एक्ट ऑफ 1951 को डिस्कस किया है. यू कैन फाइंड द लिंक इन आई बटन एंड वॉच इट. इन द कंटेक्स्ट ऑफ बाईपोल्स और बाई इलेक्शंस वी नीड टू लर्न सम फैक्ट्स. नंबर 1 कि बाई इलेक्शन होता क्या है? ये एक स्पेशल इलेक्शन है जो किसी वैकेंट सीट को फिल करने के लिए करवाया जाता है. किस वजह से सीट वैकेंट होती है? किसी जो मेंबर है उसकी डेथ हो जाए, वो रिज़ाइन कर दे, कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए या उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया जाए. इन 4 सिचुएशन में कोई भी सीट वैकेंट होती है. तो आरपीए एक्ट 1951 में ये मैंशनड है सेक्शन 151 ए के अंदर कि जब भी वैकेंसी हो गई उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाना है. अगर जो भी सीट वैकेंट हुई है उसकी बची हुई टर्म 1 साल से ज़्यादा है, इन दैट केस इलेक्शन करवाना है. अगर 1 साल से कम है बचा हुआ टाइम तो आपको इलेक्शन नहीं करवाना. बाय इलेक्शन की कॉस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बियर करता है. Moving to our next question, consider the following statements. Number 1, a bill amending the constitution requires prior recommendation of the President of India. Number 2, when a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent. Number 3, a constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. You get to know that only 2 and 3 are the correct statement, and statement 1 is wrong because prior recommendation is not required. In explanation, we need to learn about Constitution Amendment Bill.
सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता क्या है। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रोविज़न को ऐड करने के लिए या उसको रिडिफाइन करने के लिए, राइट, या किसी चीज़ को उसमें से डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए, ये 2-3 काम करने के लिए अगर कोई भी बिल लाया जाता है संविधान में तो संविधान संशोधन बिल बोलते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको कहाँ लाया जाता है? इसको लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। कौन लेके आता है? कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर लेके आ सकता है इस बिल को। सेकंड इज, इसके लिए प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। थर्ड पॉइंट इज, हर हाउस को सेपरेटली इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब यह क्या है कि more than 50% of the total strength of the house and 2/3 of those present and voting in the house. 2/3 means 66% of those present and voting. In addition to this, जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अगर दोनों हाउसेज के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेके तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न लाइक दी नॉर्मल अदर बिल्स। प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ेगी, वो उसको विदहोल्ड नहीं कर सकते और ना ही उसको बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज़ मेंशन की गई थी जो 1971 में किया गया था। अब कुछ टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट देखते हैं। मेनली तीन टाइप से अमेंडमेंट होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, यानी जो भी प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में मैंशनड है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर है, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट, ये दो टाइप के प्रोविजंस आते हैं जिनको हम नीचे डिस्कस करेंगे। सिंपल मेजोरिटी से आप स्टेट्स के नाम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट में एमपीज की सैलरी है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई बात है, शेड्यूल 2, 5 और 6 से रिलेटेड कोई बात है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से रिलेटेड कोई इश्यू है, दीज ऑल कैन बी डेल्ट विद सिंपल मेजोरिटी। इसके अलावा आती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसमें आप क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स, पीपीएसपी, इन सब को अमेंड कर सकते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब क्या है कि जिस भी हाउस के जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग दी वैकेंसीज और एब्सेंटीज, सबको इंक्लूड करके जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसको टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस बोलते हैं। थर्ड केस क्या बनता है? स्पेशल मेजोरिटी, सेम एज द अबव। इन एडिशन टू दिस देयर इज नीड ऑफ कंसेंट ऑफ स्टेट, यानी 50% बाय सिंपल मेजोरिटी। इस केस में यूनियन और स्टेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड, पार्लियामेंट में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात है, शेड्यूल 7 से रिलेटेड बात है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर है, ये सब चीज़ें स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स से अमेंड होती। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, that is cabinet minister, minister of state with independent charge, minister of state and deputy minister. Second, the total number of ministers in the union government including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. Which of the statements given above is or are correct? Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So we get to learn that only second statement is correct, first is रॉन्ग बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है जिसको इंडिया ने अडॉप्ट किया। एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो प्रोविजंस है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में डिस्कस्ड है। आर्टिकल 74 बात करता है स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इसका मतलब देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देगी वो किसी कोर्ट में
इंक्वायरी उसके बारे में नहीं हो सकती और वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। ये 74 के अंडर मेंशन है। 75 डील करता है अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स, and in this context we need to learn the total number of ministers including PM shall not exceed 15% of the total strength of the house। 91st अमेंडमेंट जो किया गया था 2003 में, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न ऐड किया गया था। In addition to this, in lecture 11 we have discussed in question 5 in detail about article number 74 and 75. Link will be provided in I button. You can visit it and watch. Further, Indian Constitution does not provide any classification for ministers. It is based on ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ब्रिटेन से हमने ये सीखा है, वहाँ से हमने प्रैक्टिस अडॉप्ट की है कि मिनिस्टर्स को इन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोक सभा? नंबर 1, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। Number 2, to pass a motion of no confidence against the Council of Ministers. Number 3, to impeach the President of India. Select the correct answer using the codes given below. 1 and 2, only 2, 1 and 3, only 3. We got to learn that only 2 is the correct answer. Because to ratify declaration of emergency, we also need Rajya Sabha, and to impeach president, we also need Rajya Sabha. We will learn about it in explanation part. एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा क्या हैं, सॉरी लोकसभा की क्या है। नंबर 1, मनी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। मनी बिल जो आर्टिकल 110 में मैंशनड है, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके रिगार्डिंग स्पीकर डिसाइडिंग अथॉरिटी है, वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। और राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ इसको डिस्कस कर सकती है और इसको पास कर सकती है या फिर 14 डेज के अंदर उसको विद और विदाउट रिकमेंडेशन रिटर्न करना होता है। सेकंड बात जो है लोकसभा की पावर्स के रिगार्डिंग इज जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग को हमेशा स्पीकर ही प्रिजाइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर एक्सक्लूसिव पावर। थर्ड इज बजट। बजट के रिगार्डिंग भी राज्यसभा कैन डिस्कस बट इट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। इन एडिशन टू दिस, रिजोल्यूशन टू डिसकंटिन्यू इमरजेंसी कैन ओनली बी पास्ड इन लोकसभा। बट एक पॉइंट हमें यहाँ ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है कि जब इमरजेंसी लगाने की बात आती है तब दोनों हाउसेज के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आर्टिकल 352 में मैंशनड है। लेकिन इमरजेंसी को हटाते समय सिर्फ लोकसभा में रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है, लोकसभा की राज्यसभा की ज़रूरत नहीं। इन एडिशन टू दिस, देयर इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए स्पीकर की असेंट की और 50 मेंबर्स के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोकसभा के। लेक्चर 16 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसके बारे में डिटेल से ऑलरेडी बात की है। यू कैन फाइंड द लिंक इन आई बटन, विजिट एंड वॉच। रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट, वी लर्न दैट किसी भी हाउस में उनके खिलाफ प्रोसेस शुरू की जा सकती है उनको इम्पीच करने के लिए, यानी हटाने के लिए। उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से, राइट। आर्टिकल 61 में इस पूरे प्रोसीजर के बारे में बात की गई है। उनको सिर्फ एक ही ग्राउंड पे हटाया जा सकता है, दैट इज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको पहले 14 डेज का नोटिस भी देना पड़ेगा। जब भी ये प्रोसेस होगी उसमें प्रेसिडेंट मौजूद रह सकता है। Moving to our next and last question, consider the following statements. Number 1, Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India. Number 2, according to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. Which of the statements given above is or are correct? Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So we get to learn that both of the statements are wrong.
लेट्स सी व्हाई दे आर रॉन्ग। अटॉर्नी जनरल एंड सोलिसिटर जनरल, सोलिसिटर जनरल जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसमें, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट में, सिर्फ अटॉर्नी जनरल कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स रेजिग्नेशन, ये मैंशनड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक जनरल प्रैक्टिस है, इसके बारे में मैंशनड नहीं, वो रिमूव करने का प्रोसीजर है। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन पार्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। वहाँ पे आर्टिकल 76 में इसके बारे में मैंशनड है, ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेम ऑफिस स्टेट के लिए भी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, जो 165 में मैंशनड है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया के, स्टेट पे लेवल पे इनको स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। इनका टेन्योर कितना होता है और इनको रिमूव कैसे किया जाता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट इनको चाहे हटा सकते हैं, वही इनको अपॉइंट करते हैं। कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करती है, ये भी रिज़ाइन साथ में करते हैं। इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स हो, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इन एडिशन टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, देन द पर्सन इज क्वालिफाइड। फंक्शन क्या होंगे उन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट को एडवाइस करना लीगल मैटर पे, जो भी मैटर उनको प्रेसिडेंट रेफ़र करते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट की बात हो रही है तो उनको गवर्नर मैटर्स रेफ़र करेंगे। बाकी जो भी फंक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, या कोई लॉ प्रेसिडेंट द्वारा बनाया गया है उसमें जो मेंशन्ड है, वो फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे। उनके पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ छूटें होती हैं, वो क्या हैं कि भाई वो सभी कोर्ट्स में, देश की सभी कोर्ट्स में उनके पास राइट टू ऑडियंस का हक है। इंडिया में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट होता है उसके पास स्टेट की सभी कोर्ट्स में सिमिलर राइट होता है। राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज में वो पार्ट ले सकते हैं, चाहे जॉइंट सिटिंग हो या किसी कमेटी के वो मेंबर हैं जिसमें उनका नाम है ऑलरेडी, उन सब की प्रोसीडिंग्स में वो पार्ट ले सकते हैं। लेकिन उनके पास कोई राइट टू वोट, वो सिर्फ पार्ट ले सकते। एंड इन एडिशन टू दिस ही एंजॉयज all the powers and immunities available to MP। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास जो भी पावर्स और इम्यूनिटी अवेलेबल होती है उनके पास भी हैं। उनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से रोक नहीं है, ही कैन प्रैक्टिस, क्योंकि वो फुल टाइम गवर्नमेंट काउंसिल नहीं है, ना ही वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। ये एक स्टेटूटरी पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। उनको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अपॉइंट करती है, जिसके हेड पीएम होते हैं। 3 साल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। उनका काम क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करना उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में। ही इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। इन एडिशन टू दिस, वो एडवाइज़ करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कौन से मैटर्स में, लीगल मैटर्स में। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।